हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो फ्रूट क्राइसिस हो गया है उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये आप फ्रूट क्राइसिस बोल सकते हैं, फूड शॉर्टेज बोल सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, किसी भी तरह बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और डेटा के हिसाब से आप देख लीजिए कि 120 ग्रेन का जो ट्रेड है ना वो रिड्रॉन होगा। रिड्रॉन मतलब मान लीजिए वो पहले रशिया यूक्रेन से आ रहा था इतने अमाउंट का ट्रेड, और अब कहीं और से आएगा और कहीं और पे जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इसका मतलब रिलेवेंस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद देखेंगे या रीजन क्या है ये जो फ्रूट क्राइसिस हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद यूक्रेन का थोड़ा मैप देखेंगे जहाँ पे ये जो व्हीट बोल लीजिए और ग्रेन बोल लीजिए जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सो दैट आपको ये जो पूरा ये जो वीडियो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या कोई और कंट्रीज हैं जो ये जो क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वॉर में मतलब अभी तो वॉर है, इन्फ्लेशन है, उसको छोड़ के और क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं हम उसके बारे में देखेंगे। इंडिविजुअल कंट्रीज ने क्या डिसीजन लिया, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ दिस वीडियो। Walk me through how you see this impacting the MENA region, because we've already seen moves by Gulf governments to help shore up Egypt's finances. Well, the hit on wheat because of the Ukraine war at the moment is being felt in a number of countries, primarily in Egypt, where there are concerns that inflation prices that were already on the rise post-pandemic are now really going to hit the poorest. You also have a similar situation in Morocco, and the government has intervened to actually start regulating prices because, of course, in addition to the fears of not having enough supply, there are unscrupulous business people who will try to make extra money from this. So you've already had certain cases in countries where there's hoarding happening and then selling at a higher price. You've had that in Lebanon. Yeah. You've had a number of instances like that in other countries, including Egypt. And so governments are beginning to intervene to try to control the supply. However, as this war drags into possibly a third month, this disruption will continue. And so governments are trying to step in advance. The Gulf, as you said, has tried to shore up Egypt because the economy is going to end up suffering if this war continues. Yeah, and it's really interesting. Last week, you and I were both at the World Government Summit. We were talking to various ministers from around the world. When I spoke with His Royal Highness, the Energy Minister from Saudi Arabia, as well as His Excellency Al Mazrui, both of them were very, very keen to point out that we're talking about inflation, we're talking about higher energy costs, and the impact that that could have potentially on social unrest. And in this part of the world, we're talking about terrorism, homegrown terrorism. And frustration that, yet again, we have another wave of crises coming in that are compounded. So you have political crises in a number of countries, including countries like Sudan, who are having their own internal chaos politically, but now have inflation and higher wheat prices. And again, bread is more that instability. staple. Exactly, and it's that staple meal. It's not. These are not luxury products. Everybody needs bread. Likewise, in Lebanon, you have this absolute fluctuation where we don't know when there's going to be a proper government in place that can deal with the many crises, the banking crisis they have, and then you have people worrying about basic foodstuffs. So there is huge concern that you could see social unrest, but also that there is no end in sight. We don't know where this is going to end up going. देखिए, रिलेवेंस समझने के बाद आपको मैं ये बोलूंगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या क्या है जो फ्रूट क्राइसिस हुआ है ना, उसका क्या रीजन है। एक है सप्लाई चेन का इशू। अब सप्लाई चेन का इशू क्या है? देखिए, सप्लाई चेन का इशू मतलब ये होता है कि आपके पास डिमांड तो है लेकिन सप्लाई करने का तरीका नहीं है। मतलब सप्लाई कौन करेगा? आप मान लीजिए रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो वहां से तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पूरी दुनिया में जो आपका जो डिमांड है वो तो चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है, सप्लाई चेन इशू मतलब इम्बैलेंस हो गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्काई रॉकेटिंग फ्राइट रेट। देखिए, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कोरोना के टाइम पे भी। वहां पे क्या हुआ था, कोरोना के वजह से मैनुअली आप किसी को मतलब गुड्स को मूव नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कोई भी आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हर टाइम आप मशीन से नहीं कर सकते। अब मशीन भी कर रहा है तो, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो इंसान चाहिए। लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, पूरा लॉकडाउन लग गया।
तो हर कोई तो घर में ही बैठा है ना, कोई तो वहां पे जाके वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से जो फ्राइट रेट है ना वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, मतलब क्योंकि जो गुड्स बहुत ज्यादा है लेकिन जो गुड्स कैरी करने वाला जो मशीन है वो कम है, तो इसके वजह से ये हो गया। और एक है वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स में मैं आपको बोलूंगा ड्रॉट हो गया कहीं पे, या कुछ क्राइसिस हो गया, तो इसके बारे में भी हम ये भी एक रीजन है, सॉरी, जो फ्रूट क्राइसिस बढ़ गया है। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो सप्लाई चेन के इशू है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको फर्टिलाइजर चाहिए, वो फर्टिलाइजर में भी इशू आ चुका है। मतलब वो फर्टिलाइजर का सप्लाई नहीं है। जैसे आपको पता होगा ये श्रीलंका में भी एक इशू हुआ था कि वहां पे फर्टिलाइजर की वजह से जो जो प्रोड्यूस होना था खाने के लिए, वो राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी भी सेम सिचुएशन हो रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपको पता होगा रशिया सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है पूरा वर्ल्ड को, लेकिन वहां पे इशू आ गया कि वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फार्मर्स क्या है कि अब वो फर्टिलाइजर नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा कि वेजिटेबल्स है वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली वो आपका जो डिमांड तो होगा ही लेकिन सप्लाई नहीं होगा, तो फिर से वो आगे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देख लेंगे एक मैप को। देखिए, इस मैप को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि रशिया यूक्रेन में कहाँ कहाँ पे ये ग्रेन प्रोड्यूस होता है। अब ये देख लीजिए, ये जो गाढ़ा वाला ग्रीन है ना, ये वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होता है। ये जो 1% है वो मान लीजिए इस तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए इस रीजन, ये जो रीजन है, पहले ये दो जगह पे जहाँ पे मोर देन 10%, मान लीजिए 20% से भी ज्यादा, उसके बाद ये जो रीजन है यहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बाकी ये जो नीचे का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे कम प्रोड्यूस होता है। और ये जो ईस्टर्न रीजन है ना, ये एक्चुअली रशिया कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे यूक्रेन कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करना और ना करना कोई मतलब है नहीं, वो रशिया ही ले लेगा। ठीक है, अब देख लेते कि मतलब जो यूक्रेन में तो इशू आ चुका है। आपको पता होगा यूक्रेन नॉर्मल टाइम पे, ठीक है, वो 5 मिलियन टन फ्रूट ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी क्या है, ओनली 5 लाख फ्रूट ग्रेन एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो गैप है ना, ये ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन टन का जो गैप है, ये क्या कोई कंट्री है जो कर पाएगा? देखिए, मॉनिटरी तो देख लीजिए, ये जो वैल्यू है ना, मतलब 4.5 मिलियन टन का जो वैल्यू है, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर, मतलब मान लीजिए 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज में। ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज इसको कर पाएगा लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, ब्राजील भी हेल्प कर सकता है, रशिया, आपको पता होगा ये यूएसए का फर्स्ट कार्गो शिप स्पेन में आया है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 4.5 मिलियन टन का जो फ्रूट ग्रेन्स वो कोई और कंट्री सपोर्ट कर पाएगा। तो आप मान लीजिए कि फूड इन्फ्लेशन रहेगा, उसके वजह से माल न्यूट्रिशन रहेगा, उसके वजह से और भी जो इश्यूज है ना वो खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ा ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल इश्यूज मतलब देखिए, फ्रूट क्राइसिस को छोड़ के और क्या क्या इश्यूज है हम उसको देख लेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप कनाडा और ब्राजील में ड्रॉट हुआ है, आपको पता होगा ड्रॉट होने की वजह से ये जो फूड क्राइसिस है ना, ये और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे भी खाने के लिए उतना है नहीं, तो उन लोगों को सप्लाई देना, मतलब ब्राजील एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जितना भी प्रोड्यूस किया है वो अपने पास ही रखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा ये जो ट्रकर प्रोटेस्ट चल रहा है ना यूएसए कनाडा में, तो इसके वजह से सप्लाई चेन पूरा बिगड़ गया है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, ये थोड़ा आपको ट्रेडिंग और शेयर्स में आपका इंटरेस्टेड है तो ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से। जितना भी कमोडिटी है ना, ये एक्चुअली ट्रेड होता है एक्सचेंजेस पे। तो आप जब इसको एक्सचेंज पे जाके देखेंगे ना, कोई भी कमोडिटी को, ये अभी बहुत ऊपर है, जो जिसकी वजह से क्या है, आपके पास इनकम ज्यादा नहीं हो गए ना, तब मोस्टली ये जो जिनके पास वो पैसा नहीं होगा वो लोग बहुत सफर करेगा। एंड एज ए रिजल्ट आप सोच लीजिए, ये डेटा है, ऑलमोस्ट 13.1 मिलियन पीपल विल बी अंडर न्यूट्रिशनाइज्ड। अब देख लेते इंडिविजुअल कंट्रीज ने क्या स्टेप लिया है। देखिए, ये जो कुछ स्टेप लिया है ना, वो हर कोई कंट्री अपने आप के बारे में ही सोच रहा है, कोई अब वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, और ये करना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्बिया,
देखिए सर्बिया बहुत कॉर्न फूड या कॉर्न व्हीट ये सब एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो अभी थोड़ा बैन लगा दिया। सिमिलरली अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, आपको पता होगा कि ये यहाँ से पाम ऑयल आता है, ठीक है। अब पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब जब आएगा आता है ना, तो अब देखिए उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है। तो मतलब वही हुआ है कि ये जो कंट्री है ना, ये एक्चुअली वहाँ पे एक्सपोर्ट जो ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया, ठीक है। सिमिलरली कजाकिस्तान ने क्या किया, व्हीट जो एक्सपोर्ट है वो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखिए करंटली वर्ल्ड इज क्रिपल्ड विद हाई इन्फ्लेशन, हाई प्राइस ऑफ फ्रूट ग्रेन्स, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म इशू, ये सब चल रहा है, ठीक है। और ये तब हुआ जब हम लोग क्या करते हैं, ये पैंडेमिक से सब जब उभर ही रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या मतलब ग्लोबली पूरा हंगर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिर थैंक यू गाइस फॉर watching my video, and please do like, share, subscribe to my channel, and have a good day, and God bless you my friends.